today we will be covering the branch operations segment. Let me first introduce my team. We are 3 members. I am Abdul Rahim, Athar Rayyan, and Mirza Khan. We have divided the presentation in 6 parts. 2 parts will be covered by me, the branch ambience and service quality, and later on the 4 things will be covered by my colleagues. Branch ambience and service quality is considered to be the most important thing in the branch. It is the backbone of the business, because the first impression which the customer takes when he enters the branch is about the ambience. If he loves the ambience and the services of the branch, me and Mirza Khan visited that branch, and the thing we noticed that it was a service excellence branch, and we have learned a lot from there. We visited the branch at early in 9 o'clock, before 9. We first noticed that the parking area of the branch was very tight, and then the cars were organized in a proper way. Later on, we visited the ATM room, and we found that it was not that much tidy, but it was properly organized. We entered the branch, and we found that all the staff were present, and they were on their tables, and they were ready for the transactions. फिर हमने ये देखा कि सब स्टाफ को टाइज वगैरह लगी हुई थी, कार्ड्स वगैरह पहने हुए थे, और स्टेशंस पे रेडी थे अपने काम करने के लिए भी. और बिफोर 9, माना exactly 5 minutes before 9, they started a prayer as normal routine in a branch. Prayer were organized, and branch manager also briefed them about what the things we have to do today, and what are the targets that we have to focus today. We also noticed that first we entered the branch, we also noticed the signage was very clear, which gives us the good impression about the branch. ATM machines branding was okay. The waiting area, the most important thing, the waiting area. From the area we come, I'm from Hyderabad. We do not have enough waiting area for the customer, but I found 2 waiting areas in this branch. One was for the customer, and it was enough. I think around 12 people can sit out easily. And another waiting area was for the clients, valued clients. And another thing that we do not have in our branches in Hyderabad, that we do not have any LCD screens placed in the branches so that the customer can be entertained over there. That was a new thing for us, and that should be improved. Services, and we found that the host of day was conducted on a timely basis. We also noticed that there was some point this branch was 100%. It is noticeable that when we see that the mystery shopping result is 100%, it means that all branch staff is aware about the things. Because mystery shopper does not come always to the branch operation manager or the branch manager. It means the branch staff is aware about the things, about the product knowledge and every aspect of it. Another thing which we found over there, that the complaint handling procedure. It was noticeable that the complaints were entertained on timely, but the complaint register that used to be put on the front desk, it was not placed over there. If it's not placed over there, how the customer can complain about it? If any customer comes to us and asks about the complaint that I want to complain, we will not provide them, branch staff will not provide them a register. If it is easily available over there, then you can put a complaint or suggestion on it. It should be placed on some visible place that the customer should write any complaint. Notice board was not properly organized, because the notices were overlapped over there. The notice should be properly organized. Another interesting thing we noticed over there, there was a queue metric system in the branch. So that was automatically observed over it. And the CSO was doing a good thing, that she is monitoring every transaction timely. Whenever customers come for a cash transaction, walk-in customer comes for a cash transaction, he immediately puts his inputs on the Excel sheet. And when the transaction is over, he puts the end time in it. So it's timely monitoring, and if anything goes wrong, they can notice it and they can correct it easily. ये time monitoring कौन कर रहा था? GPU services. GPU services. Yes, sir. बिल्कुल सर, वो फ्रंट डेस्क पे बैठी हुई थी, वो जो भी ट्रांजेक्शंस हो रही थी वो प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रही थी. वो एक अच्छी एक्सेल शीट पे उसी टाइम पंच कर देते उस वक्त. हाँ, अच्छी चीज थी सर. जो on which there is so many rush on the table, they were covered with the glass sheets on 3 sides. That's good. That's good for during current situation. It's good. That's all from my side. Now Athar will continue with the account opening and KYC limit. Thank you, Abdul Rahim. Very nice. Thank you, Abdul Rahim. मुझे जो ब्रांच एलोकेट की गई थी वो मेन ब्रांच थी, मेन ब्रांच गुलबर्ग.
पहले तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस ब्रांच को विजिट करने पे, क्योंकि ये ब्रांच एक तो मेन ब्रांच थी, बहुत हैवी फुटवर्क था। फर्दर ब्रांच जो थी वो अंडर रेनोवेशन थी, तो ये मेरे लिए एक नया चैलेंज और नया एक्सपीरियंस था कि एक अंडर रेनोवेशन ब्रांच में आप और हैवी रश में आप किस तरीके से सर्विसेज को एक्सीलेंस में लेके जा सकते हैं। तो ब्रांच में एंट्री से ही जब हम बिफोर टाइमिंग पे आए तो बड़ा अच्छा लगा, सारा स्टाफ अवेलेबल, सारे लोग अवेलेबल, और प्रेयर से स्टार्ट हो रहा है और टाइमली सब कुछ हो रहा है, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन मेरा जो टॉपिक पे आया तो टॉपिक जो मुझे असाइन किया गया वो था केवाईसी और अकाउंट ओपनिंग। जब हम वहां पे आए तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से हमें जब स्टार्ट किया तो ब्रांच बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा क्या कहते हैं साइज था उसका। कुछ अरसे की उन्होंने अपडेट नहीं की हुई थी एज पर जो हमारे उसमें है, लेकिन बाकी जो प्रीवियस था वो बड़ा अच्छा रहा उनका, बड़ा उन्होंने वो किया था, क्योंकि रश ऐसा था और अंडर रेनोवेशन ब्रांच थी तो कुछ रिकॉर्ड कीपिंग और रखना ये बहुत इशू होता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। लेकिन इससे पहले जो हमारा एक्सपीरियंस था ब्रांच का, कि हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि हमारे प्रोविंस में और यहाँ की प्रोविंस में क्या डिफरेंस आ रहा होगा। जो हमारा लर्निंग जहाँ स्टार्ट हो रही थी, वो लर्निंग ये थी कि हम सोच रहे थे कि शायद ये कुछ और कर रहे हो, हम कुछ और कर रहे हो, लेकिन नहीं, बेंचमार्क हमारा सेम था। एज पर एमसीबी हम जो वो कर रहे हैं सेम थिंग हम ही कर रहे थे, जस्ट कुछ छोटी मोटी होती हैं, डिस्टेंस हमारा था वो, लेकिन वो कुछ हमने उनसे सीखा, कुछ उन्होंने हमें सीखने का मौका दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस था। इसमें हमने सबसे पहले तो HTP देखी, जैसे मैंने HVT देखी मैं हम लोगों ने, उसके बाद हमने AML CFT पे जो देखा कि उनकी KYCs वगैरह अपडेट थे, FCCM अलर्ट जो थे उन्होंने बड़े टाइमली करके रिस्पॉन्ड किए हुए थे। टॉप 100 पे थोड़ा सा एक्सरसाइज पे वो लोग लो थे, कि उन्होंने 2018 जो थी वो एक्सरसाइज कंप्लीट थी, लेकिन 19 जो है उन्होंने अभी तक टच नहीं की हुई थी, जो कि करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा रेगुलेटर जो है चीज़ों को देख रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, हम थोड़ा सा वहाँ पे रह के इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं। रिव्यू किया जब हमने अकाउंट्स ओपनिंग को, तो CPU के एंड से बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा उन्होंने काम उस पर कर रहे थे, वो लोग डिस्क्रिपेंसीज को बड़ा अच्छे तरीके से वो देख रहे थे। पहले तो कोशिश करते थे कि वन गो में ही अकाउंट हो जाए। तो उनका आइडिया आपको डिस्क्रिपेंसी का वो परसेंटेज नजर पड़ी होगी कितनी? सर नहीं, वो ऐसा था कि हमने ओवरव्यू देखा, उसकी डिस्क्रिपेंसी का वो नहीं था, रेशियो हमने उसकी क्या कहते हैं ऐसे नहीं देखी, लेकिन ये था कि अगर कोई अकाउंट आ रहा है तो विद इन अ टैग में ही वापसी उसको क्या कहते हैं रिजॉल्व किया, रिस्पॉन्ड किया जा रहा था उसके साथ। फर्दर जो उसमें क्या कहते हैं रिस्क रेटिंग वगैरह थी, हाई वैल्यू, लो हाई क्या कहते हैं मीडियम लो, उसके ऊपर जो ये क्या कहते हैं काम कर रहे थे वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा था। फर्दर ब्रांच ऑपरेशन में जब हमने GLs वगैरह के लिए देखा, GL माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छा GL था, उन्होंने सारे हेड्स वगैरह और हर चीज बड़ी बैलेंस रखी हुई थी। जस्ट एक क्या कहते हैं ATM बैलेंसिंग में उनका कुछ आउटस्टैंड था, जो उन्होंने टेकअप ऑलरेडी मैटर टेकअप किया हुआ था, और उसी पे GL अपलोड वगैरह पेंडिंग था, लेकिन वो इशू नहीं था, वो ट्रेस अप हुई हुई थी एंट्रियां। फर्दर लेकिन एक छोटी सी शॉकिंग मतलब वो थी कि मैं जब काउंटर पे गया तो मैंने कैश जो TSO है मैंने उनसे कहा कि आप ये बताएं कि आपके पास अगर शर्ट पीरियड के प्राइस बॉन्ड आ जाएं तो आप क्या करेंगे। तो बड़ा क्लियर से उसने एक जवाब दिया, हम नहीं लेते। तो मैंने उनको कहा नहीं, ये हमारा बेंचमार्क नहीं है, आपने ये तो कह दिया, चलेंगे आपकी और मेरे सामने की हम जनरली एक डिस्कशन कर रहे हैं, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने उनको कहना है कि हमने रिसीव करते हैं और लेते हैं और लेना भी है, लेकिन उसकी प्रॉपर एक रिपोर्टिंग है कि हमने सर्कल ऑफिस को करनी है, SBP को उसको रिपोर्ट करना है, आफ्टर जो है बैलेटिंग जब वो जो हो जाता है उसके बाद हमने उसको डिस्पोज ऑफ किस तरह करना है, वो पूरा एक प्रोसीजर है हमारे पास। तो वो थोड़ा सा एक वो नॉलेज वो था शायद वो, लेकिन मैंने उनको टाइमली उसी जगह पे गाइड भी कर दिया कि ये अवेयरनेस है कि, लेकिन डिस्टेंस नहीं है, ये छोटे से अवेयरनेस नहीं थी उनकी इस बारे में। बाकी स्टॉक उन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ था। UV लैंप्स जो होते हैं वो सिर्फ कैश काउंटर पे इस ब्रांच में अवेलेबल थे, या शायद रेनोवेशन की वजह से अपडेट थे, लेकिन मैंने पूछा भी, लेकिन बाकी टेबल्स में नहीं, जो कि एक सिक्योरिटी रिस्क है, हम अपने रीजन में वो मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वहां पे इस तरह के स्टांस हो सकते हुए भी हैं प्रीवियस डेज में। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है वो करें। यहाँ पे थोड़ा सा उसमें नेग्लिजेंसी थी कि वहां पे बाकी टेबल्स पे अवेलेबल नहीं थे इस चीज का।
जो मतलब एक वो उसमें स्पेशली सर्कुलर में लिखा हुआ है कि जो आपका रिसेप्शन का इवन काउंटर है जहाँ पे बिल्कुल। डिस्प्ले फिल होती है बिल्कुल। वहाँ पे भी यूवी लाइट होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। और जीबीओ के पास भी होनी चाहिए बिल्कुल। तो वो नहीं वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सिर्फ कैशियर काउंटर बाकी पे सारे काउंटर पे होनी चाहिए होनी के हर टेबल पे चाहिए सबको इवन वो कहते हैं स्टेटमेंट कहता है कस्टमर के लिए भी आप लगाएं ताकि बिल्कुल। कस्टमर को पता लगे कि ये भी कोई चीज है चीज जिसको चेक हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। तो ये थोड़ा सा एक चीज जो है ये ऑब्जर्व नहीं हो रही थी। उसके अलावा कैश रेशो बड़ी अच्छी उन्होंने मेंटेन की हुई थी, मतलब कि अंडर बिलो 1% थी, जो बड़ा अच्छा था। इतने बड़े साइज में और इतनी ज्यादा रिसीविंग में उनको इसमें करना ये बड़ा अच्छा साइन था। फर्दर इसमें एक और चीज थी क्या कहते हैं जो मैंने एक ऑब्जर्व की कि जिस तरह कैश हाउस में हम लोग गए उन्होंने डिसइंफेक्ट मशीन लगाई हुई थी नोट्स को, ये हमारे प्रोविंस में नहीं है। अब हमें क्वारंटीन के लिए 14 से 15 दिन जो है कैश को करना पड़ता है क्योंकि करंट सिचुएशन कोविड की है ना, हम इसको मद्देनजर रखते हुए तो ये एक नई चीज थी हमारे लिए और हमने ये भी देखा इसको मतलब रेस करना चाहिए और हमारे प्रोविंस में भी ये चीजें होनी चाहिए ताकि हम भी, क्योंकि सबसे पहले अब इंसान की जिंदगी ही है, अगर वो हो तो फिर सब कुछ है, सारी बहार है इसी चीज से। तो ये एक अच्छी चीज है जिसमें हमें भी वहां पे जाके हम इसको भी पॉइंट आउट करेंगे कि इसकी डिमांड करें और ताकि ये हमारे लिए क्या कहते हैं अच्छा भी हो जाए और इससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी। वो एक मशीन एक आप किसी में भी नहीं है ना, क्योंकि ये एक स्पेशल एसबीपी की पेनल्टी भी वर्क करता है अगर क्वारंटीन कैश देना है। लेकिन इसमें सोचने की बात ये है कि अगर हम सोचें यार ये मशीन एक मिसाल है कि 5 मिलियन की है तो वो 5 होगी जस्ट हमने सोच रहे हैं सिर्फ इस बारे में 5 मिलियन की मशीन है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर हम जो हर ब्रांच का कैश रख के हम उसको 15 डेज जो क्वारंटीन करते हैं जो उसका जो एक्सपेंस बनता है ना वो तो हमारे लिए यूजलेस है ना, यूज कहीं नहीं हो रहा। अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो वो हमारे लिए बहुत मिनिमम हो जाएगी, वो 5 मिलियन नहीं होगी, वो हम बहुत नीचे कॉस्ट पे आ जाएगी उसके, क्योंकि वो टोटल पूरे प्रोविंस में अगर 50 ब्रांचें हैं तो उसकी कॉस्ट से बहुत कम हो जाएगी। तो ये चीज एक हमारे लिए मतलब जब आपने कैश मैनेजमेंट की बात की है तो राम साहब जब से तशरीफ लाए और इस एरिया में उन्होंने जो है ना वो उनके अंडर आया है साउथ वाला, तो हाफ है जो एरिया फॉर एग्जांपल पहले 34 अरब जो है वो अवेलेबल होता था तो अब इसका हाफ जो है वो ब्रांचेस के अंदर कैश इन हैंड 50% में उन्होंने इसको कट किया है, तो जिसकी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिल्कुल कितनी ऐसी कॉस्ट। बिल्कुल सर। बाकी अनक्लेम उन्होंने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था कि प्रॉपरली टाइम पे वो चीज़ें देख रहे थे, सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने माशाल्लाह बैलेंस की हुई थी एज पर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, नॉर्मल ब्रांचेस में हर प्रोविंस में एज पर बेंचमार्क चल रही होती हैं, इसमें कोई इसमें वो नहीं हो रहा था। लॉकर ऑपरेशन में भी अच्छा था कि उन्होंने जो लॉकर्स उनके ब्रेक ओपनिंग में थे उस पर कस्टमर्स को लेटर लिखे हुए थे, प्रॉपर इन्फॉर्म किया हुआ था और फर्दर जो लीगल में थी चीज़ें उनको लीगल के हिसाब से उन्होंने वो किया हुआ था और सबको उसका बारे में पता भी था, जो कंसर्न स्टाफ था और नॉलेजेबल भी थे इस चीज में। बीएम के वोचर चेकिंग में कहते हैं प्रॉपरली वो कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी इसमें एक ऑब्जेक्शन थी, वो जो कैश बुक जो थी ना उसको क्या कहते हैं फोर्टनाइटली जो साइन करने होते हैं ना वो नहीं हो रहे थे। लेकिन शायद बिग ब्रांच है शायद, लेकिन बिग ब्रांच का इशू नहीं है, ये हमारी जेडीज में है, हमने उसको करना होता है। तो वो एक जस्ट 1-2 मिनट या 5 मिनट का आपका होता है कि आप एक 15 दिन में जाके आप अपने कैश काउंटर में आज बता दो भाई कैश क्या है। इससे क्या होता है कि आपका जो टीएसओ है वो थोड़ा सा भी वो भी होता है यार कोई पता नहीं कि सुबह ही मैनेजर साहब आ जाएं और ये चीज चेक कर लें, तो ये सरप्राइजली बहुत अच्छा होता है। कभी ये लाजमी नहीं कि आपने डे एंड पे चेक कर लें, आप नेक्स्ट डे आके सुबह मॉर्निंग में चेक कर लें, ये मतलब एक अच्छा चीज है। उससे वो भी रहती है यार कल को यार भाई मैं ऐसा कोई काम ना कर लूं, क्योंकि हमें देखना तो सबके लिए है ना, जिस चीज की शॉप होती है रिस्क भी उसी चीज का होता है ना। तो मैं कहता हूँ हमारी शॉप जो है वो पैसों की शॉप है, तो हमारा रिस्क भी जो आ रहा होगा वो इसी में आ रहा होगा, तो हमने इसी को कम करने के लिए छोटे छोटे स्टेप हैं तो बहुत माइनर, लेकिन इनका जो ड्रॉबैक है वो बहुत ज्यादा हो जाए, इम्पैक्ट जो आता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो वो हमारी फेस सेविंग के लिए छोटे छोटे हमें काम करने चाहिए। मेरा नाम मिर्जा खान है, कुछ लाख ब्रांच क्वेटा से ताल्लुक है। ब्रांच में लोग इंटर में है, काफी नई चीजें देखी, काफी चीजें ऑब्जर्व की है। आप इधर ब्रांच में भी जॉर्जटाउन अभी जॉर्जटाउन में मैं और रहीम साहब दोनों गए थे जॉर्जटाउन। ब्रांच में मैं आपको ब्रांच के ओरा डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जो हम मेनली हम लोग मैनेजर्स का है। ब्रांच में जब हम लोग गए ब्रांच के टारगेट्स अचीव थे, ओरा कुछ सिनारियो में और कुछ अचीव नहीं थे। मैं टारगेट बता देता हूँ, 270 मिलियन उसका एब्सोल्यूट का टारगेट था जो कि अचीव था। करंट में ब्रांच जो थी वो 25 मिलियन दिसंबर के टारगेट से रह रही थी,
ब्रांच मैनेजर अश्योर थे कि ये 25 मिलियन में दिसंबर से पहले कर लूंगा, बल्कि उसमें कुछ और भी ऐड कर लूंगा। ब्रांच का एवरेज जो था वो 6% था, 6% प्लस में ब्रांच जा रही, और ब्रांच जो थी उस एनटीबी वीडीसी में काफी पीछे। एनटीबी उसका टारगेट जो था वो 600 था, ब्रांच ने 50% किया हुआ था, 300 अकाउंट्स खोले थे, और ब्रांच के वीडीसी का टारगेट जो था वो 774 था, उसमें 411 उसने अचीव किया, 55% ये भी बन रहा है ब्रांच मैनेजर ने अचीव किया। उस बारे में फिर उनसे बात हुई कि क्योंकि आपके पास तो टाइम बड़ा काफी शॉर्ट है, 1 मंथ का रह गया है, अब आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खोलूंगा, क्योंकि आपकी फी बेस्ड इनकम भी बढ़ जाएगी, उसमें वीडीसी आ जाएंगे, काफी चीजें आएंगी। एक्सपेंस के हवाले से उसकी बात ये थी, मैंने कहा एक्सपेंस के हवाले से आप क्या करोगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो ब्रांच के आपने कम कर रहे हैं। उसमें उसने ये किया था कि क्योंकि अभी सारे एक्सपेंसेस सेंट्रलाइज हुए हैं, ब्रांचेस के एक्सपेंसेस कम हुए, तो इस वजह से ब्रांच जो है वो प्रॉफिट में है 8 मिलियन, और आप उसने 8 मिलियन प्रॉफिट में दी। दूसरा, गाड़ी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। कार लोन में उसको 10 गाड़ियों का टारगेट मिला था, उसने 19 गाड़ियां सेल आउट की थी, जिसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस ब्रांच मैनेजर ने शो की। ब्रांच मैनेजर बड़े एक्टिव थे। कुछ टारगेट्स मैंने उससे पूछा कि क्योंकि आपके टारगेट्स काफी ज्यादा है डीसी एनटीबी में, एक मैनेजर नहीं कर सकता, तो आपने क्या किया स्टाफ के वाले? उसने कहा मैंने सारे स्टाफ को टारगेट एलोकेट किए हुए हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन में सारे सबको अपने टारगेट्स का पता है, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर 100% नहीं हुआ तो उसमें से हम लोग मेनली कर लेंगे। फिर हम लोगों ने ब्रांच मैनेजर की फाइलिंग एचपीटी के हवाले से टर्नओवर एक्सेप्शन, एक चीज मैंने उसकी ऑब्जर्व की, ब्रांच मैनेजर के पास 3 फाइलें लाजमी होनी चाहिए। आपके पास हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपके पास होनी चाहिए, टर्नओवर एक्सेप्शन होनी चाहिए, और एसएमपी फाइल आपके पास होनी चाहिए। टर्नओवर एक्सेप्शन फाइल उसने अपने पास नहीं रखी थी, वो उसने जीपीओ सेल्स के पास रखी हुई। जब भी ऑडिट आपके पास आता है, वो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करता है कि ये 3 फाइल अगर मैनेजर कंप्लीट कर रहा है तो तीनों फाइल उसके कपबोर्ड में होनी चाहिए। अगर उसमें से कोई आप प्ले कर रहे हो तो वो ऑब्जर्व कर लेता है कि यार इसमें कुछ चीज है। एचवीसी में उसकी एक और चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की, हम लोग करते हैं, जैसे कोई दुकान है, करियाना स्टोर है, हम लोग लिख लेते हैं नीचे करियाना स्टोर पेमेंट, लेकिन उसमें आप ये लिखना है कि ये पेमेंट वो किस चीज की कर रहा है, ऑयल ले रहा है, शुगर पेमेंट है, क्या है, वो पूरी डिटेल नहीं डाल रहा था। Purpose along with the occupation. Occupation Purpose plus के साथ कंप्लीट पर्पस जो था वो नहीं था। purpose है। उसकी एक टॉप 100 की फाइल हम लोगों ने चेक की, टॉप 100 उसने माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेंटेन की, उसमें से उसने 2 चीजें कम की थी। एक तो केएम से उसने रिपोर्ट जो निकाली हुई थी, केएम रिपोर्ट से निकाली, एक नेक्जेरिया आता है सर्कल ऑफिस की तरफ से, हम लोग वो लगाते हैं 2019, उसके लिहाज से टॉप 100 कंप्लीट करते हैं। उसने केएम से एक रिपोर्ट निकाली हुई थी और उसने बंच तो कंप्लीट किया हुआ था, उसमें कुछ सिग्नेचर भी मिसिंग थे उसके नीचे लेवल पे। जब भी स्टेट बैंक आएगा ये चेक करेगा, वो प्रॉपर्ली आपकी मेंटेन होनी चाहिए। बाकी मैनेजर साहब की बड़ी अच्छी चीज मैंने देखी उस ब्रांच में, कस्टमर जब भी आता था वो खुद उठ के खड़ा होकर काउंटर पे उसकी चीज स्लिप दे देता था और वापस आता था। उसमें से एक एक्स एमसीबी के भी हम लोगों के कोई हेड आए हुए थे, उसको भी उसने बड़ी जबरदस्त सर्विस के लिहाज से ब्रांच मैनेजर काफी एक्टिव थे। फाइलिंग के हवाले से थोड़ी चीजें हम लोगों में भी है, कुछ चीजें हैं उसमें ये चीज थोड़ी मिसिंग। और एक बड़ी अच्छी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, कोयटा की जो चीजें हैं हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। हालांकि ये सिटी भी बड़ी है, काम भी ज्यादा है, हम लोग बड़े हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हम लोगों में एक चीज में हम लोग मार खा रहे हैं, एक हम लोग अपने अपेयरेंस में मार खा रहे हैं। जब भी कोई बाहर से एग्जीक्यूटिव आता है, विजिट करता है, पहले अपेयरेंस में जब हम उनको चेक करता है वो समझ लेता है कि ये लोग थोड़े पीछे है शायद। लेकिन वर्किंग के लिहाज से मैं यकीन दिलाता हूँ, वर्किंग के लिहाज से हम लोग जो चैलेंजेस फेस करते हैं और जो काम करते हैं शायद ये लोग सोचते भी नहीं, क्योंकि हम लोग के पास जनरेटर्स के इशू आ रहे होते हैं, वो भी मैनेजर जाके सॉल्व कर रहा होता है, मार्केट में घूम रहा होता है, यूपीएस के हवाले से भी सॉल्व कर रहा होता है, उसके पास टीम भी काफी कम होती है क्योंकि रिमोट एरियाज है, स्टाफ की कमी होती है, ये चीजें होती है। लेकिन वर्किंग वो सुबह से शाम तक इतनी वर्किंग करता है, टॉप हर फाइल मेंटेन करके रखता है, जो चीजें जहां पे मिसिंग है वो कर रहा होता है। यहाँ पे चैलेंजेस एज कम्पेयर टू बीएम के पास काफी कम होते हैं, उसके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, सर्विस क्वालिटी हर चीज मेंटेन होती है, उसको ये परेशानी नहीं होती कि मेरे पास यानी सिस्टम नहीं है, ये जनरेटर का इशू है। वो अपने वर्किंग में अगर वो करे, सही ऑब्जर्वेशन सही लाइन के साथ करे, वो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। हम लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ उस एरिया में हम लोग बड़े जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग कहाँ पे मार्क कर रहे हैं? अपेयरेंस में, लैंग्वेज बैरियर में और कम्युनिकेशन में। ये ट्रेनिंग जो है, इस चीज में मैंने एक चीज बड़ी अच्छी सीखी,
ये हम लोगों की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जो नीचे चला जाता है कि पता नहीं हेड ऑफिस क्या है, सर्कल ऑफिस क्या है, उस हवाले से क्या है, हम लोग थोड़े डर के पीछे जा रहे होते हैं, बैक बेंचर्स बन रहे होते हैं। अगर वही टीम आगे, आप यकीन करो आपकी बलूचिस्तान की टीम सबसे टॉप होगी, टारगेट्स में परफॉर्म कर रही है, करंट अकाउंट में बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, हर चीज में परफॉर्म कर रही है। लेकिन वो जहाँ पे मार कर रही है, पर्सनल ग्रूमिंग में मार कर रही है, टेलीफोन एटिकेट्स में मार कर रही है, उस पे लिहाज से मैं मैडम से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बलूचिस्तान में कोई आप इस तरह करें ग्रूमिंग के हवाले से, ऑपरेशनल स्टाफ के हवाले से, कि उसको बुलाएं, प्रॉपर बिठाएं कि आपने किस तरह डे टू डे कम्युनिकेशन करनी कस्टमर्स के साथ, अपने से बड़े जो आपके प्रोफेशनल स्टाफ है उसके साथ, और आपस में आपने किस तरह ताल्लुकात रखने। अगर वो ये ग्रुप कर जाए तो आप यकीन करें बलूचिस्तान की टीम तीनों से पहुंचा की जाएगी इंशाल्लाह, मैं श्योर करता हूँ, क्योंकि उसमें बड़ी पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन क्या है, वो रिमोट एरियाज में, साइड वाली एरियाज में काफी। मैडम एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी पहले, उससे पहले 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मैडम ने कराची में दी। वो ट्रेनिंग जब हम लोग कर गए, आप यकीन करें हम लोग को परसेप्शन चेंज हो गया, जिसमें 7 हैबिट था शाफकंद साथ। आपने हमेशा इसी पे काम करना है, अभी भी मैं हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। हम लोग हर रोज हर चीज किया, मैडम ने जो बताया था लास्ट वाला, हालांकि स्टीफन कोवे का पहले भी मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन जिस तरह मैडम ने डिलीवर किया और हमारे माइंड में डाला कि हमें किस तरह लेके चलना है, क्योंकि एक चीज आप होते हो बेस्ट पढ़ते हो, एक आपके प्रैक्टिकली माइंड में डाला जाता है। इसी तरह ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि मैडम बलूचिस्तान में थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि वो बैकवर्ड है, इस एरिया में इंस्टीट्यूट ज्यादा है, ट्रेनिंग ज्यादा है, काफी चीजें ज्यादा है, ग्रूमिंग ज्यादा है, उधर नहीं है। उधर अगर मैडम के आने से काफी फर्क पड़ा है। एमसीबी में ट्रेनिंग्स काफी कम थी, सीबीएम के अलावा कोई नहीं था, हमें याद है। अभी हम लोगों के नाम ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं बार। ये बड़ी खुशाई मैडम इसमें हम लोग वो डाल देते हैं कि उसने ये स्टार्ट किया है, सब की तरफ से हम लोग काफी डिस्कस करते हैं, मैडम के लिए वो क्लिपिंग भी है। उसके बाद कुछ जो है एमसीबी मैनेजमेंट, स्पेशली मैडम का बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू कहते हैं कि उसने सच अ वंडरफुल प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, हमें मौका दिया कुछ सीखने का, एग्जीक्यूटिव साथ मिलने का, क्योंकि एक हम लोगों का एक से इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही दूर, यानी एक कोने पे, ईरान के बॉर्डर पे, स्पेशली हम लोग का मेरा गवादर का, और हम लोगों का यहाँ पे स्टाफ का स्पेशली नॉलेज बहुत कम है, बहुत ही कम। बाकी स्टाफ का अगर कोई अकाउंट ओपनिंग के लिए आ जाता है तो वो लड़के डायरेक्ट जीबीओ भी हो, जिसके पास जाता है डायरेक्ट उसका उंगली इस तरफ है पीएम की तरफ, अकाउंट ओपनिंग के लिए आया जिस चीज़ के, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज की वजह से इसी तरह बिल्कुल उसका इशारा इसी तरह, और हम लोग को उम्मीद यही है कि इसको कंटिन्यू रखना चाहिए इंशाल्लाह सर। वही सिर्फ बीए का नहीं, की बात कर रही थी ना, स्पेशली बीए का नहीं, दूसरे स्टाफ का भी, होम का हो, जीबीओ हों वगैरह, क्योंकि उनको भी नॉलेज की जरूरत है। सबसे पहले जो कस्टमर आते हैं वो ब्रांच में आते हैं, फर्स्ट सर्विस जो मिलती है उसको वहाँ फ्रंट एंड पे ब्रांच से, और बाद में जो कॉल सेंटर है वगैरह है तो सेकेंड वो वहाँ पे हम गए थे कॉल सेंटर में, जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन वगैरह ये थे, उनको कुछ चैलेंजेस वगैरह आ रहे थे, एक सिस्टमेटिक इशू थे उसमें, और टाइम ड्यूरेशन जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि मुख्तलिफ क्लाइंट बात करते हैं, उनको मुख्तलिफ इलाकों से, 4 सूबों से उनको काज आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कस्टमर के लैंग्वेजेस, बिहेवियर वगैरह ये होते हैं, और स्पेशली जो उनका जो था 1 विंडो ऑपरेशन होनी चाहिए। देखा कि मुख्तलिफ किस्म के कॉल आते हैं, मुख्तलिफ उसके किसी का एटीएम के हवाले से, किसी का अकाउंट के इंक्वायरी से, इसी तरह के, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे जल्दी से इस तरह के कोई बात के काम कर रहा है, इसी तरह के वो चैलेंजेस उनको दरपेश थे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, गुड थैंक यू मकबूल साहब। मेरा नाम जान मोहम्मद है, मेरा ताल्लुक मातली ब्रांच मेरे काफ़ी जनते है। जैसे कि मकबूल साहब ने बताया कि हमारा जो विजिट हुआ था कॉल सेंटर पे, तो उस पर कॉल सेंटर पे जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, जो हमने वहाँ पे देखा, आप भी हमारे साथ ही थे, तो उनमें से कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे अपना एक समराइज किया है, पॉइंट लिखे हैं, वो आपसे साथ शेयर करते हैं। चैलेंजेस तो मकबूल साहब ने आपको बता दिए,
हम आते हैं कि हमने वहाँ कॉल सेंटर के स्टाफ को और ब्रांच को आपस में थोड़ा कंपेयर किया कि किस तरह मतलब वो किस तरह काम कर रहे हैं और हम किस तरह काम कर रहे हैं। तो उसमें जो थे, एक तो जैसे कि ग्रेटिंग का था। फॉर एग्जांपल हमारी ग्रेटिंग जो होती हैं कॉल पे होती हैं, मिसाल के तौर पे अस्सलाम वालेकुम एमसीबी, तो इन्हों की एक रिकॉर्डेड होती है और मखसूस ग्रेटिंग होती है कि अस्सलाम वालेकुम, जैसे आज फॉर एग्जांपल जान मोहम्मद मे आई हेल्प यू, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और था। लेकिन उसमें एक था कि वो थोड़ा फास्ट कह रहे थे, कोई मतलब फिरोज था उसमें। बहरहाल उनकी ग्रेटिंग हमसे बेहतर थी। उसी ग्रेटिंग्स पे आ जाते हैं तो ग्रेटिंग सिर्फ कॉल तक ही महदूद नहीं रहती, लेकिन फिजिकल ग्रेटिंग्स भी होती हैं। जैसे कि हम सिंध में होते हैं तो कॉल्स पे भी कहते हैं भाई हुक्म करो, मतलब सर आप जो भी है हुक्म करें, हम हाजिर हैं। तो इसी तरह मतलब फोन पे और जो फिजिकली ग्रेटिंग्स होती हैं उसको देख लिया किसी टीवी में कि कस्टमर आ रहा है तो ब्रांच के गेट पे ही पहुंच गए, वहां से रिसीव कर लिया, फिर वहां ब्रांच पे एंड कर। लेकिन फोन की ग्रीटिंग्स पे होता है तो हमारी हमने उनको कॉल सेंटर वालों को अब हमसे बेहतर समझा। ठीक, उसके बाद पेशेंट लेवल पे हमने उनको जज किया कि ब्रांच का पेशेंट लेवल और कॉल सेंटर के स्टाफ का पेशेंट लेवल में क्या है। तो हमने देखा कि उन पे बहुत ही रूड वगैरह और उनका कोई कस्टमर कॉल सेंटर विजिट से पहले भी, अगर हम भी किसी कॉल सेंटर एमसीबी में ना नहीं, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल के कॉल सेंटर हो गया या किसी पे, तो हमारा एक डिफरेंट। लेकिन कल कॉल सेंटर विजिट करने के बाद अगर मैं अब उस विजिट के बाद कभी भी किसी भी कॉल सेंटर पे कॉल करूंगा तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि वहां पे हमने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा उस मतलब कस्टमर के रूड बिहेवियर को पेश कर रहे थे। ब्रांच में ये होता है पेशेंट लेवल इतना सच मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर की हो गई टीएसओ से हो गई या जीपीओ से, तो उसका पेशेंट लेवल तो होता है, लेकिन उस कस्टमर को हैंडल करने के लिए तब तक कोई दूसरा स्टाफ आ जाता है, उस कस्टमर को हैंडल कर लेता है, तो इतना ज्यादा नहीं मतलब। लेकिन कॉल सेंटर वालों को क्योंकि एक तो उनकी रिकॉर्डेड कॉल होती है, इस वजह से भी उनको एक प्रोटोकॉल दिए हुए हैं कि आपके भाई अगर देखें कोई बहुत ही ज्यादा बदतमीज करना एक टाइम दूसरे टाइम तीसरे, तो उसके बाद फाइनली उनको कॉल ड्रॉप करनी होती है, लेकिन कहना कुछ नहीं होता उनको ना। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट नॉलेज पे। प्रोडक्ट नॉलेज पे एक तो बहुत ही अच्छी चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिली कि उनके पास सिस्टम पे एक ही दिया हुआ है मैन्यूल, उस पर सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है। जस्ट वन क्लिक के थ्रू वो क्या करते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट की अगर कोई आ रहा है NRI नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, या कोई गवादर के कोई दूर गांव से कोई भी एक माइनर की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो उनको मतलब हर इंफॉर्मेशन एक क्लिक पे होती है। लेकिन ब्रांचेज में अक्सर हमने जैसे कि मकबूल साहब ने भी डिस्कस किया कि भाई इशारा कर देते हैं उस बंदे के पास चले जाएं, उस बंदे के पास चले जाएं, तो वो जो एक होती है अपना प्रोडक्ट नॉलेज ना होने की वजह से ये फेल। लेकिन उसमें भी हमने इनको मतलब यही हम एक तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कंटिन्यूस मतलब उनको गाइड किया जाता है, तो इस वजह से हमने प्रोडक्ट नॉलेज में भी उनको ब्रांच स्टाफ से काफ़ी बेहतर पाया। उसके बाद लिसनिंग स्किल, अगर जैसे कि वो काम कर रहे हैं जो कॉल सेंटर में बैठे हुए हैं, अगर वो लिसनिंग स्किल्स उनके अच्छे ना होंगे तो वो जॉब नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी तरह ब्रांच में लिसनिंग स्किल्स ये हैं कि ब्रांच में एक जीपीओ बैठा है या बॉम बैठा है या बीएम बैठा हुआ है, उसको डिफरेंट एक ही टाइम पे 3-3, 4-4 कस्टमर को फोन भी अटेंड कर रहा है, कस्टमर एक को बैलेंस भी बता रहा है, दूसरा कस्टमर का चेक भी पास के लिए करना है, तो लिसनिंग उसकी मल्टीपल। लेकिन इन्हों को जो कॉल सेंटर स्टाफ है उन्हों को सिर्फ एक ही है फोन पे कॉल करनी है, तो उस पर हम कह सकते हैं कि ब्रांच वाले एक मल्टी मतलब टास्क कर रहे होते हैं। इस वजह
शायद हम उनको मतलब जो हमारी टीम जो हमने प्रेजेंटेशन बना रहे थे तो हमारी इस पे बहस हो रही थी कि भाई कौन बेहतर लिसनिंग, तो हमने जो प्रेफरेंस दी, हम कॉल सेंटर वाले अपना ब्रांच स्टाफ है वो बेहतर है लिसनिंग स्किल, लेकिन इनकी कॉल सेंटर स्टाफ की जॉब तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो बेहतर लिसनर ना हो, एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर। उसके बाद सिस्टम हैंडलिंग, सिस्टम हैंडलिंग से मतलब कि वो कैसे फ्रीक्वेंटली सिस्टम यूज कर रहे हैं या क्या मतलब, तो इसी में भी ब्रांच के पास मल्टी होती हैं ऑप्शंस होती हैं, मतलब टास्क होते हैं, चेक क्लियर करना होता है, अकाउंट खोलना होता है, जैसे कि मतलब किसी ब्रांचेज में स्टॉक की शॉर्टेज भी होती है तो वहाँ पे एक ही बंदा 3-3 4-4 टास्क कर रहा होता है, तो वो सिस्टम हैंडलिंग तो होती है, लेकिन जो इनके पास था कि इनको मतलब इतना फास्ट वो, क्योंकि कॉल उनके लिए जो होती है कॉल सिर्फ एक 4 मिनट की होती है, उसके बाद उनका टेक बस्ट हो रहा होता है और उनकी APR पे मतलब इफेक्ट करता है, तो उस 4 मिनट में उनको कॉल को क्यूरीज को उनको इंटरटेन करना होता है, तो इस वजह से सिस्टम हैंडलिंग जो इस तरह से फास्ट वो मूव कर लेते हैं, हमें लगा हमारे ब्रांच स्टाफ से वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करें हैं। और कस्टमर हैंडलिंग, जैसे कि कस्टमर इनको सिर्फ एक ही कस्टमर कॉल पे जो होता है उनका सिर्फ कोई भी कंप्लेन होती है या वो लॉग करना होता है, लेकिन कस्टमर हैंडलिंग ब्रांच एंड पे बहुत ही मतलब स्किल कस्टमर हैंडलिंग के ब्रांच स्टाफ के पास ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक टाइम 4-5 कस्टमर हैंडल कर रहा होता है, तो इनका हमने जो कंपेयरिंग किया अपना ब्रांच स्टाफ और कॉल सेंटर स्टाफ में, तो कस्टमर हैंडलिंग हमें ब्रांच स्टाफ की बेहतर लगी। उसके बाद हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी, जो आपने भी शायद अपना नोट की होगी, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड नोट करते जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक लॉग कॉल का तो लॉग बन नहीं रहा था, लेकिन एक सेपरेट वो नोट पैड में लॉग बनाते जा रहे थे, जो कि पॉजिटिव चीज थी। उसके बाद अपना हमारा विजिट CPU की तरफ था, CPU की तरफ था। CPU का आपको मंजूर साहब बताएंगे जो